Hello all, welcome to the new session. So from this session, we are going to start the unit number second, which is ordinary differential equation and partial differential equation. So uh, here in the first part of unit number two, which is related to the solution of ordinary differential equation, we are going to discuss about the three methods. First is a Euler's method, second one is a Runge-Kutta second order for simultaneous equation, and third method is a Runge-Kutta fourth order method, right? So in this today's session we are going to discuss about the Euler's method. So first we'll discuss about the total syllabus of unit number 2, then we'll move towards the method, right? So here this is the syllabus related to the unit number 2. Again, you can see here this unit number 2 is divided into the two parts. So first part is related to the ordinary differential equation, and second part is about the partial differential equation. So it is also called as a ODE and PDE. So in case of this ordinary differential equation, uh, we are going to discuss about the Euler's method, Runge-Kutta fourth order method, and Runge-Kutta second order for simultaneous equation. Similarly, in case of a partial differential equation, there is a parabolic equation, Laplace equation, and Poisson's equations are there. So parabolic explicit method, elliptic explicit method. So total three methods are there in case of if you are considering the partial differential equation. So first we'll discuss about the ordinary differential equation. So this session is about the Euler's method, राइट सो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे कि यूलर्स मेथड से हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, राइट? सो डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल, देन विल डिस्कस step by step how we'll get the solution for ordinary differential equation by using Euler's method, right? So here this is the numerical for Euler's method. So first, as always, read the numerical carefully and write down the given data. So here solve the differential equation dy by dx is equal to under root of x plus under root y. So this is the equation given in the numerical, and using Euler's method under the boundary condition x is equal to 2 and y is equal to 0. So here the initial conditions are given in the numerical, that is x is equal to 2 and y is equal to 4, and we have to calculate the value of y at x is equal to 2.5 in 10 step, right? Here 10 step means here this is the number of iterations are given in the numerical, right? So first write down the given value. So here write down given. Oh, so right, given is equal to equation is given in the numerical. So we can write down like this: f of x y is equal to dy by dx is equal to under root of x plus under root y. This equation is given in the numerical. Then the initial conditions are also given in the numerical. So here x is equal to x0 is equal to 2. ये हमें initial condition दी है x के लिए. Similarly, the initial condition for y is given in the numerical, that is y is equal to y0 is equal to 4, right? तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू y का, मतलब yg का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है एट x इज इक्वल टू 2.5, मतलब xg इज इक्वल टू 2.5, राइट? तो सो जब xg का वैल्यू 2.5 होगा तो yg का वैल्यू कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और इसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन दी है और इक्वेशन दिया है, राइट? ये dy बाई डी के फॉर्म में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है, जो कि आप उसे आप f ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हो, राइट? सो ये हमने गिवन डेटा लिख लिया, राइट? अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एंड वन मोर थिंग इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, दैट इज स्टेप्स. सो स्टेप्स इज नथिंग बट n is equal to 10. So number of steps, that is number of iterations are given, right?
Again, Euler's method is a iterative method, so you have to do the number of iteration. Now here 10 number of iterations are given in the numerical, so you have to do up to the 10th iteration. 10th iteration में जो आपका आंसर आएगा, that is your final answer, right? वो मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से आएगा. So here first, after writing down the given data, we need to first calculate the step size h, right? So here calculate the calculate step size, that is h, right? So स्टेप साइज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, जो कि हम नंबर ऑफ इटरेशन जब कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक हमारे पास इक्वेशन है, n इज इक्वल टू x0 xg माइनस x0 डिवाइडेड बाय h, राइट? सो इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो मुझे h मैं कैलकुलेट करता हूँ, बिकॉज h इज नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h एंड n इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, राइट? सो मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकूंगा, h इज इक्वल टू xg minus x0 divided by n, right? So here you can see xg is given in the numerical, then xo is given in the numerical, or x0 is given in the numerical, and n is also given in the numerical. So by putting the given value into this equation, you can calculate the value of h, that is step size, right? So मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो xg is equal to 2.5 मेरे पास है, जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है. उसके बाद xo is equal to 2, जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है, इनिशियल कंडीशन. उसके बाद नंबर ऑफ steps are given in the numerical, so here write down the 10. Now calculate the value of h, that is step size. तो आपको स्टेप साइज मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन 0.05, राइट? 0.05 स्टेप साइज आपको मिलेगा. अभी इसका यूज कहाँ पे होगा स्टेप साइज कैलकुलेशन का, वो जब हम इटरेशंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, राइट? सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टेप साइज विल मूव टुवर्ड्स द इटरेशंस. अभी इटरेशंस यहाँ पे हमें कितना करना है, इटरेशंस हमें 10 इटरेशन तक हमें जाना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर स्टेप साइज 10 स्टेप न्यूमेरिकल में हमें मेंशन किया है. सिमिलरली दूसरे किसी न्यूमेरिकल में आपको h की वैल्यू गिवन होगी, तो उस h की वैल्यू से आप नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सेम इक्वेशन. दिस इक्वेशन यू कैन यूज, राइट? तो आप इसमें अगर h की वैल्यू गिवन होगी तो इसी इक्वेशन में आप h पुट करो, xg माइनस x0 डिवाइडेड बाय h, आपको नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएगा. तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी इटरेशंस तक ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, राइट? इसमें नंबर ऑफ स्टेप हमें डायरेक्टली दी थी. तो हियर इटरेशन नंबर फर्स्ट, इटरेशन 1. अभी इटरेशन 1 जब हम करेंगे तब आपको क्या करना है, इटरेशन 1 में सबसे पहले इनिशियल कंडीशन हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, तो इनिशियल कंडीशन हम लिखेंगे x0 इज इक्वल टू 2 एंड y0 is equal to 4, which is given in the numerical, you can see here, right? Now here you have to first calculate the value of x1, right? x1 क्यों, क्योंकि हमें 10 स्टेप करते जाना है, तो जैसे जैसे हम ये स्टेप साइज उसमें ऐड करते जाएंगे तो हमें उस तरीके से इटरेशंस मिलते जाएंगे, और लास्ट इटरेशन में हमें बराबर वैल्यू मिलेगी 2.5, जो कि हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए. xg इज इक्वल टू 2.5 के लिए yg की वैल्यू हमें मिल जाएगी, राइट? तो अगर स्टेप साइज हम 0.05 से बढ़ाते जाएंगे तो वो कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, राइट? तो इटरेशन 1 के लिए x0 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, और h मैंने कैलकुलेट किया है, h इज इक्वल टू 0.05 मैं यहाँ पे लिख दूंगा. इस तरीके से मुझे x1 मिल जाएगा. सो x1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2.05, राइट? तो इसको मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना दूंगा. अभी इसके बाद आपको यूलर्स मेथड का फॉर्मूला यूज करना है. अभी यूलर्स मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस
h इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, ये फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूला में आपको ये कैसे लिखना है, जो इनिशियल कंडीशंस है वो कैसे लिखना है। तो सिंपल है, जो इक्वेशन हमें दिया है ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई, इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पे आपको एक्स जीरो और वाई जीरो की वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, प्लीज थोड़ा केयरफुली यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले इज इक्वल टू वाई जीरो की वैल्यू मुझे पता है कितना है, तो वाई जीरो इज इक्वल टू 4, राइट, प्लस h इज इक्वल टू 0.05 जो हमने कैलकुलेट किया है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये f ऑफ एक्स वाई, मतलब क्या होता है, ये dy बाय dx जो हमें ये गिवन फंक्शन दिया है, ये पूरा का पूरा फंक्शन, राइट। दिस ऑल्सो कॉल्ड एज अ f ऑफ एक्स वाई, जो कि हमने यहाँ पे भी मेंशन किया था, राइट। तो ये मुझे एक्स जीरो वाई जीरो के फॉर्म में लिखना है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, एक अंडर रूट ऑफ एक्स जीरो प्लस अंडर रूट ऑफ वाई जीरो ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इसमें अगर मुझे वैल्यू पुट करना होगा तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू कितना है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ वाई जीरो की वैल्यू कितनी है 4। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी y1 की, तो मैं इसको लिखूंगा y1 इज इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन दिस, राइट। सो आफ्टर कैलकुलेशन y1 इज इक्वल टू 4.1, राइट। सो यहाँ पे आपका इटरेशन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। अभी जब नेक्स्ट इटरेशन में आप जाओगे, इटरेशन नंबर 2 में, तो नेक्स्ट इटरेशन नंबर 2 में जब आप जाओगे तब आपको नेक्स्ट इटरेशन के लिए एक्स जीरो की वैल्यू जो आपने पिछला x1 कैलकुलेट किया था वो लेना है, और y जीरो की वैल्यू आपको जो पिछला y1 है वो वैल्यू लेना है, राइट। इसको थोड़ा केयरफुली आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जब नेक्स्ट इटरेशन में जाओगे तब आपने जो नई x1 और y1 की वैल्यू की कैलकुलेट की है इटरेशन नंबर 1 में, वो होंगी x जीरो और y जीरो की वैल्यू, और आप फिर से x1 कैलकुलेट करोगे, राइट। मैं आपको करके बताता हूँ, राइट। मूव टुवर्ड्स द इटरेशन नंबर 2। हियर सी इटरेशन नंबर 2, इटरेशन नंबर 2। अभी इटरेशन नंबर 2 में एक्स जीरो क्या होगा, एक्स जीरो जो हमने प्रीवियस y1 x1 कैलकुलेट किया ये वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.05, राइट। और y जीरो क्या होगा इटरेशन नंबर 2 में, जो हमने लास्ट इसमें y1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो कि ये है 4.1, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा y जीरो इज इक्वल टू 4.1, राइट। नाउ आफ्टर राइटिंग डाउन दिस, अगेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1। x1 के लिए हमारे पास फिर से फॉर्मूला है, x1 का फॉर्मूला x0 plus h, right? So here x0 is equal to, for second iteration, 2.05 plus h is equal to 0.05. Calculate the value of x1 for iteration number 2. So x1 आपका आएगा, x1 is equal to 2.1, right? Again use the formula for Euler's method, that is y1 is equal to y0 plus h into f of x0 y0, राइट। तो यहाँ पे y0 क्या है 4.1, सो 4.1 प्लस h is equal to 0.05 multiply by, again we have a equation which is given in the numerical, that is under root of x plus under root of y, so मैं यहाँ पे लिखूंगा x0 plus under root of y0। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 4.1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू कितनी इटरेशन नंबर 2 के लिए 2.05, सो 2.05 प्लस अंडर रूट ऑफ y0 फॉर इटरेशन नंबर 2 इज 4.1,
इसको कैलकुलेट करूंगा, मुझे मिलेगी वैल्यू y1 की फॉर इटरेशन नंबर 2. सो फॉर इटरेशन नंबर 2 y1 इज इक्वल टू 4.2. right? Again we have a value for x1 and y1 for iteration number 2. So x1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया 2.1 और y1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया इटरेशन नंबर 2 के लिए 4.2. सिमिलरली मूव टुवर्ड्स द इटरेशन नंबर 3. अभी इटरेशन नंबर 3 के लिए x0 और y0 की वैल्यू क्या होगी? x0 इज इक्वल टू दिस इज 2.1 एंड y0 इज इक्वल टू 4.2. इस तरीके से आपको कब तक करते जाना है? नंबर ऑफ स्टेप्स आर 10. सो 10 इटरेशन तक आपको करते जाना है और 10 इटरेशन में आपको x1 की वैल्यू मिलेगी 2.5 और उसके लिए आपको वैल्यू मिलेगी y1 की, जो होगा आपका आंसर. और वही हमें न्यूमेरिकल में पूछा है कि इफ xg इज इक्वल टू 2.5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ yg. सो ये आपका आंसर आएगा. राइट मैं पूरे इटरेशन करके नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा. राइट सो आई होप कि आपको ये 2 इटरेशन से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ गया होगा. मैं आपको थर्ड इटरेशन करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको वैल्यूज बता दूंगा और आंसर बता दूंगा कि आफ्टर 10th इटरेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ yg. राइट सो इटरेशन नंबर 3 हम करेंगे. इटरेशन नंबर 3 पे आप जब जाओगे, iteration number third, right? So again here write down the value of x0. previously जो x1 की वैल्यू थी जो थी 2 कितना था वो 2.1. so x0 is equal to 2.1 and y0 is equal to 4.2. right again calculate the value of x1. so x1 is equal to x0 plus h. x0 plus h कितना है? x0 is equal to 2.1 plus 0.05. again calculate the value of x1. so थर्ड इटरेशन के लिए x1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 2.15. 2.15 बहुत ही सिंपल है एग्जाम्पल है, बस आपको थोड़ा केयरफुली समझना है. पहले एक दो न्यूमेरिकल, बाद में आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा. आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो यूलर्स मेथड के लिए. नाउ अगेन हियर यूज द फॉर्मूला फॉर यूलर्स मेथड, दैट इज y0 प्लस h मल्टीप्लाई बाय f of x0 y0. again here y0 is equal to 4.2 plus 0.05 multiply by under root of x0 plus under root of y0. वैल्यू पुट करेंगे 4.2 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ x0 इज इक्वल टू 2.1 प्लस अंडर रूट ऑफ y0 is equal to 4.2. Calculate the value of y1 for iteration number 3. So for iteration number 3, the value of y1 is 4.3018. Now move towards the iteration number 4. 4 के लिए x0 is equal to 2.15 and y0 is equal to 4.3018. Calculate the x1 and again repeat the same procedure. right तो इसी तरीके से आपको 10th इटरेशन तक करते जाना है. राइट और 10th इटरेशन में जो y1 का वैल्यू आएगा दैट इज द फाइनल आंसर. राइट सो इस तरीके से कुछ वैल्यूज होगी. मैं आपको एक टेबल बना के बताता हूँ. मतलब आप जब सॉल्व करोगे तब आप वैल्यू आपकी टैली कर सकते हो. राइट तो यहाँ पे ये पहला कॉलम मैं बनाऊंगा नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए, दूसरा कॉलम रहेगा x1 की वैल्यू के लिए और तीसरा कॉलम रहेगा y1 की वैल्यू के लिए. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन n, उसके बाद ये होगा x0 और ये होगा x1 और ये होगा y1. राइट सो 3 इटरेशन तो कर दिए हमने, 4 5 6 7. so here
4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। सो x1 की वैल्यू क्या होगी फोर्थ इटरेशन के लिए 2.2, और उसके लिए y1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप 4.4045, उसके बाद 2.25, 4.5082, 2.3, 4.6127, उसके बाद 2.35 सेवन्थ इटरेशन के लिए आएगा, और y का वैल्यू आएगा 4.7182 फॉर एट्थ इटरेशन। x1 is 2.4 and y1 is 4.8245 नाइन्थ इटरेशन में आएगा आपका 2.45 and 4.9317, and for last iteration, that is 10th number, 2.5 and 5.0394. now you can see here last value is 2.5. so हमें न्यूमेरिकल में बोला है कि xg is equal to 2.5, calculate the value of yg. so ये जो वैल्यू रहेगी y1 की, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज 5.0394, राइट। तो इस तरीके से आपको यूलर्स मेथड के हर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। आपको पहले न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से रीड करना है, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है वो लिखना है, इनिशियल्स कंडीशन क्या दी है वो करना है कैलकुलेट। उसके बाद आपको या तो नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो आपको नंबर ऑफ स्टेप साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। और यही रिपीटेड सेम प्रोसीजर आप जितने नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए करोगे, लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। सो आई होप कि आपका जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ आप थोड़ा इसके रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए, दो चार न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए, आपका प्रैक्टिस अच्छा होने के बाद आप हर न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। विल meet in the next session, which is related to the Range Kutta second order for simultaneous equation. Thank you.